I don't take note of delay at all. We have to work in tandem and togetherness, in attitude of cooperation, and I seek guidance of very senior members. One of them has spoken a while ago. Matters of urgent public importance. Shri V. Vijay Reddy. Thank you, Chairman, sir. Chairman, sir, it is very important issue which I would like the Leader of the House and Leader of the Opposition and also the Honourable Members to take note of it, sir. Sir, I wish to bring to the notice of this August House the menace that is caused by the instant loan apps, sir. Sir, the modus operandi is to give instant loans. In fact, I also have been receiving so many messages very often that I have been sanctioned the loan of 2 lakhs, 5 lakhs, etc., etc. And through these mobile applications and in the process, they gain access because they ask for the access to our data. They ask for the access to our data, whether sensitive messages, gallery, and then photos, videos, whatnot, everything from our mobile applications, sir. And the cycle of blackmailing and the extortion starts there, sir. Once they gain access to our mobile data, and if the borrower is forced to, in fact, what happens, sir? After the loan is availed and the amount is credited to our bank account and the repayment starts, where if the borrower fails to repay the amount or installment is not repaid promptly, then the borrower is forced to repay an amount is much, much higher than the loan amount and which is very exorbitant, sir. If the borrower resists, what happens? He is threatened with dire consequences, with leaking of sensitive and personal information of the borrower. Sir, in fact, majority of the instant loan apps are being operated from China. It is not from India. And after all, the cases that are being booked on Indian citizens who are agents of these loan apps, sir, being operated from China. Sir, these loan apps engaged in finance business. It is nothing but lending the money. Any finance company engaged in the business of financing has to be registered with the Reserve Bank of India as an NBFC, which is not happening. So I want this to be taken note of by the Honourable Leader of the House, sir. Andhra Pradesh has witnessed so many cases of extortion and also blackmail to do the best of to address this issue, and so many cases have been registered, and then some of the persons have been arrested, and AP Police worked Central Computer Emergency Response Team, sir. And sir, finally my request is, I request the Honourable Minister to intervene and ban such apps. Number 2, punish the developers and promoters. Number 3, formulate stricter laws and regulations around the privacy of phone data, sir. Thank you very much, sir. Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, here to my question, the government has replied that related to the vacancies of the jobs. Unemployment is a very serious crisis in our country. Sir, it is a shocking around that 10 lakh posts are vacant in the ministries of the government departments itself. But in the last 5 years, only less than 2 lakh posts have been filled by the government. Sir, this is a shocking incident. That means less than 40,000 appointments per year. This is very less number of recruitment. Earlier, this government has replied to my question that the vacancies in railway is 2,26,000. Sir, in army, the government has replied 1,31,000 posts are vacant, and the huge number of vacancies in other posts also reported. Sir, in this recent reply of my question, the union government stated that in 23,000 posts are in vacancies in Group A category. Sir,
118,000 posters vacancies in Group B category, and 8 lakh posters is vacant in C category, sir. 8 lakh posters are vacant in Group C category. See the huge number of vacancies in the government sector. Sir, the youngsters in the country is facing huge problems, various problems because of the unemployment. In IT sector, we are seeing a new crisis. The IT companies are reducing the salaries, and the terminations of employees reported in the various IT companies. Sir, the government of the country, they look in the matter very seriously, and I request the government fill up all vacancies as soon as possible. Otherwise, the youngsters in the country face huge other problems. So, thank you, sir. Thank you. Shri Pavitra Margarita. हेलो, नमस्कार सर। सभापति महोदय, बचपन से ही मेरा सार्वजनिक भाषण देने का थोड़ा बहुत आदत है, लेकिन पहली बार मैं जीवन में हिंदी में भाषण देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि मेरा मातृभाषा असमिया हो या अन्य भारतीय भाषा हो, इसी तरह हिंदी विश्व का एक अन्यतम श्रेष्ठ भाषा है। सो माननीय सभापति महोदय, आपका जरिए मैं सदन को ये बोलना चाहता हूँ बेहद खुशी से कि अगली साल 2023 में ही अपना असम चाय का 200 वर्ष पूरा होगी। वी आर कंप्लीटिंग 200 इयर्स, 200 वर्ष पूरा होगा, और असमवासी तथा असम का सरकार डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये जो 200 साल का ये उत्सव हम मनाएंगे। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार भी असम को सहायता करे कि भारत सहित विश्व का अन्य प्रांत में भी ये माना जाए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। और दूसरे मेरा बात यह है कि चाय को नेशनल ड्रिंक हिसाब से घोषणा किया जाए, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से उत्तर पूर्वी तक हर घर की रसोई में, माँ का रसोई में एक चीज मिलता है, व्यवहार सर्विस रूज होता है, वो है चाय। और हम सब लोग, देश भर की हर नागरिक सुबह शुरू करते हैं हम एक कप चाय से। चाय अपना भारत का, अपना संस्कृति का अभिन्न अंग है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डिक्लेयर टी एज अ नेशनल ड्रिंक और बेवरेज। एंड थर्डली, आई थिंक अब देखा जा रहा है कि चाय का नाम पे आजकल दूसरा चीजों की भी बाजार में बेचा जा रहा है, जैसे अपराजिता फूल। अपराजिता फूल ठीक है, सही है, लेकिन अपराजिता फूलों को, जो रस को हम ब्लू टी के नाम पे बाजार में अब बेचा जा रहा है, लेकिन इट्स नॉट टी। टी हैज अ सेपरेट साइंटिफिक नेम एंड अपराजिता फूल हैज सेपरेट साइंटिफिक नेम। सो चाय तो चाय होता है। सो ये मिलावट, दूसरा नाम पे सेल करना एन अनएथिकल प्रैक्टिस है। सो मैं ये निवेदन करता हूं कि ये मिलावट को भी देखा जाए। थर्ड, हर चाय का हर पत्ती के पीछे चाय श्रमिकों का श्रम और त्याग होता है। असम में लगभग 50 लाख से अधिक चाय का श्रमिक है, उन लोग का त्याग है। ब्रिटिश राज का 100 साल और बाद में कांग्रेस राज का 70 साल में बहुत हम लोग खो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि चाय बागान के श्रमिकों के लिए भी कुछ एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माय चाय श्रमिक, क्योंकि स्वतंत्रता में भी अपना चाय बागान का प्राणाहुति हुआ था, और ओवरऑल डेवलपमेंट का चाय बागान का बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज माय फोर अपील टू डिक्लेयर टी एज अ नेशनल ड्रिंक। थैंक यू। श्री इलामारम करीम। Thank you, respected Chairman. So I am raising an important issue. There is an urgent need to extend GST compensation for some more years. The compensation which has been in place till June 30, 2022 was provided through a central legislation. As the 5-year compensation period has ended, the states are no longer eligible for compensation. This is a matter of serious concern for states like Kerala. The fixing of rates and the equal apportionment deprived the states of a revenue neutral in GST. The standard rate of earlier value-added tax, which was 14.5%, fell to 9%. Compensation was a necessary measure to make good the loss consequent to fall in the standard rate
and imbalance resulting for equal apportioning of GST rates. Also, the COVID pandemic has caused a substantial slowdown in economy, with revenues falling and expenditure obligation rising. Kerala also witnessed natural calamities in the 2 years preceding to pandemic. In our scheme of distribution of fiscal powers, there is a vertical imbalance between the union and states in this has been worsening. Sir, states like Kerala are also facing added difficulties to conditionalities imposed on open market borrowings. The revenue deficit grants for Kerala will also cease with effect from the financial year 2024-25. In a view of these facts and circumstances, I urge the government to consider the request of Kerala and other states that the provision for compensation to bridge the shortfall in growth of GST revenues be continued for another 5 years. Sir, I am quoting from a letter sent by Honorable Chief Minister of Kerala to Honorable Prime Minister. He is referring from 15th Finance Commission's report. I quote, in recent years, rising fiscal deficits in many states has been a key indicator of growing vertical imbalances despite higher tax devolution from the union, reflecting inadequate transfers to the states relative to their expenditure need and revenue raising capacity. This is a report of Finance Commission that is itself is not honored by union government. I am very sorry, sir. So I urge upon the government to take necessary action immediately. The honorable member may place the letter on table of the House. Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you, sir. Sir,
as you would appreciate, a vast country with rich diversity like India, the policies and decisions cannot be Delhi-centric. Sir, recently, a stipulation has come out which says that there should be 1 kilometer limit from the forests for lives and livelihood of the people. Sir, this has created widespread panic amongst the people of Kerala. Sir, as you know that Kerala is a narrow strip of land having linear orientation, of which 30% is forest. And in fact, 50% we have forest cover, sir. Sir, according to a study now, if the stipulation which has come out is implemented, almost 1 lakh buildings have to be demolished. Cultivation in 4 lakh acres of land needs to be abandoned. Even the High Court of Kerala has to be vacated. Sir, this has got far-reaching impact for the lives of millions of people in Kerala. I would urge upon the central government that a realistic view needs to be taken as to this buffer zone that has been brought in, and the central government has to approach the Supreme Court to make sure that such stipulations are withdrawn ASAP. Thank you, sir. Shri Javed Ali Khan. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका, सरकार का और सदन का ध्यान दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे अल्पसंख्यक चरित्र दिया गया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 के तहत संचालित होता है, वहां हो रहे इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करता है, उनकी नियुक्ति की शर्तें तय करता है। जामिया एक्ट 5(2) ये धारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तों के बारे में है। मैं इस केस की मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो सज्जन आज रजिस्ट्रार के पद पर आसीन किए गए हैं या बिठाए गए हैं, वो सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्ट की धारा 23(j) इस बात पर जोर देती है कि जामिया में स्टूडेंट यूनियन होगी, टीचर्स की एसोसिएशन होगी, एकेडमिक स्टाफ की एसोसिएशन होगी और 4th क्लास एम्प्लॉयज की एसोसिएशन होगी। लेकिन पिछले 15 सालों से जामिया में छात्र संघ को भंग किया गया है, उसको पुनर्जीवित नहीं किया गया है। और अभी 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, जामिया का जो अध्यापक संघ है, जो 1967 से संचालित था, उसको भी भंग कर दिया गया है। उसने अपने इलेक्शन के लिए जिस रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया, आउटगोइंग टीचर्स एसोसिएशन नियुक्त करती है, उस टीचर्स एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर को भी सस्पेंड करके शोकाज नोटिस दिया गया है। सर, जामिया मिलिया इस्लामिया में एक्ट में एक धारा है 44, जो वहां के पुराने छात्रों के लिए एलुमनाई एसोसिएशन बनाने की बात करती है। जामिया के प्रशासन ने उसको भी भंग कर रखा है। सर, ये खुला उल्लंघन हो रहा है। वहां एक धारा है जामिया एक्ट में 5(13), जो जामिया में छात्रावासों के निर्माण पर बल देती है। वहां बहुत छात्रावास हैं, करीब 8000 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन विगत 2 वर्षों से जामिया के अंदर कोई छात्रावास खुला नहीं है, जबकि वहां 18000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 8000 स्टूडेंट करीब करीब। श्री एम सनमुगम। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। Thank you, Chairman, sir. I demand to fix minimum support price of tea
and pay fair wages to tea plantation workers. Sir, plantation industry is actually agro-based industry like tea, coffee, rubber, spices. This industry is a labor-intensive industry, providing assured employment to several lakhs of people directly and indirectly, apart from proving itself as a good earner for foreign exchange. It also contributes to the protection of the sustainable environment in hilly areas and forest land. Under the provisions of the Plantation Labour Act, the management is obliged to provide the workers facilities like housing, medical, education, etc. About 60% of price realized of their products, especially tea, is being spent on wages and such related items. The tea producers are unable to fetch desired prices for their finished goods due to cartelization of the actionees. To prevent any competitive price being allowed to bid in the action centers, there is an obvious mismatch between the cost of production and actual price realized, which leads to acute financial crisis, and many tea planters are closed and tea plantation workers are suffered. I would therefore urge upon the Union Government to determine minimum support price on the basis of Swaminathan Committee recommendation to sustain the tea plantation industry. The government should intervene and see that unfair trade practice cartelization in the action price process are stopped and tea growers get reasonable price for their produce. Tea plantation workers in Assam and Northeast are not paid fair wages, and they are paid only 200 per day, whereas the workers in Tamil Nadu and Kerala are getting more than 400 rupees per day. Therefore, the government should ensure that the tea plantation workers in Assam and Northeast are also paid fair wages so that they could lead a dignified life with their families. Thank you, sir. Shri Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे ये साफ लगता है कि इनको देश के शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर, सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। 0.5%। सर मैं सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। Take your seat. Honorable members, when a very distinguished member of this House, while giving his input, referred to a communication written by the Honorable Chief Minister to the Honorable Prime Minister, I directed the Honorable member to put that on table of the House. Why I did it? Because in this House, we cannot allow any member to give out facts that are not substantiated, and that constitutes a very serious breach of privilege. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this House cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. And that is why, to a very distinguished member, where it was not required, I wanted that practice to be there, that if a Chief Minister of a state has sent a communication to the Honorable Prime Minister and details are not made available, that should be on record. That will be shared with the members. So the Honorable member can make his input. But while making the input, it has not to be a speech. The Honorable member must focus on actual figures
and I will call upon the honorable member to put the relevant record on the table of the House. If the record is not there, I may seek guidance from the honorable members that will be breach of privilege of this House. Because this House, one second, this, number one. Number two, this House has, this House, one second, this House has to be a platform of putting across everything that concerns the public at large. Any expression cannot be controlled here. The only controlling factor is we have to believe in sanctity of the document. A newspaper report, an opinion given by someone is absolutely of no consequence. What I need is legally admissible documentation must be the premise of making an allegation. Honorable member. बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही सर। 1 मिनट बोलने दीजिए सर, 1 मिनट बोलने दीजिए सर। प्रियंका चतुर्वेदी इस सदन की one second. Sir, don't show a paper like this. नहीं सर, let us not have that. ऐसे बोल देते, Otherwise, we'll be engaging in and honorable members, leader of the House, leader of the opposition. सर, धन्यवाद, आपने मुझे 2 बात कहने के लिए परमिशन दी। तो इस सदन में जो आपने कही कि फैक्ट्स, फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहिए। सर, जो भी सदस्य यहाँ पर बात करते हैं वो या तो अनस्टार्ड क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं या स्टार्ट क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं उस आधार पर भी बात करते हैं। और मीडिया जर्नल, आप उसको मानो या न मानो, आप उसको कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको कभी मीडिया का भी फिगर्स लेना पड़ता है, जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिखते वो भी लेना पड़ता है, कभी सदन में अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई आते वो लेना पड़ता है, या स्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई वो देते वो लेना पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने का। अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या है? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का। अरे ये तो जबान से निकली हुई है, प्राइम मिनिस्टर के जो जबान से निकलती है हम ये समझते हैं ये उनकी ऑथेंटिसिटी है, उनके फिगर्स करेक्ट है, उस आधार पे ही हम उठाते हैं। तो इसीलिए कृपया करके आप हर बात को ये कहना। Leader of the House. अध्यक्ष जी, one second. There is Leader of the House, a please. Honorable members, I am so glad that we are deliberating on an important issue that will give us an insightful approach how to deal with the situation on the floor of the House. We have the benefit of leader of the opposition. Anything reflected on the platform of this theater by way of starred question response or unstarred carries sanctity. I will have a meeting with the floor leaders. I'll have meeting with the floor leaders. I am of the opinion so far that this platform is very august platform. Anything reflected here, the person must own the statement. And that statement has to be on the strength of authenticated, sanctified documentation. If the honorable members and floor leaders have a perception on it, I will have a special meeting with them tomorrow, get their input, and we will have a way forward stance, Leader of the House. Honorable Chairman, sir, this has become a very regular practice of shoot and scoop. You just make any allegations.
One second, please. Honorable member, Sonia, would you please take a seat? Are we, honorable leader of the House, I think I have made my point very clear. One second, wait for your turn. Doesn't matter, take your seat. Please take your seat. Sanjay Singh, take your seat. Take your seat. Take your seat. Miss Priyanka Chaturvedi, take your seat. Number one. Number two, it does not look nice for me. I'm getting a lot of disturbed inputs from academia for students that every time there is something and there is a trigger to rush to on the seat, why be there crosstalk? Honorable member, I'm here. If you have to say to me. Forget about it. They are being dealt with equally on the same footing. So let's not have it. We heard the leader of opposition in rapt attention. He had a point to say. Leader of opposition has made 4 important points. They are the points we need to deliberate. Similarly, leader of the House, and I'm sure the leader of the House would maintain the same level so that we act towards a mechanism, we evolve a system, and we abide by that. Leader of the House. Honorable Chairman, sir, of late we are finding that it has become very simple. There are a number of websites, a number of social media platforms on which people make all sorts of claims which are unsubstantiated by fact. They are not backed by any starred or unstarred questions, response in Parliament. They are not even backed by RTI. Suggestion. We have, Honorable Chairman, I need a minute. We have a lot of cases where then when you fact check it, your suggestion, you come out with fake claims. Your suggestion. Therefore, when a very senior member of the House, who is also sitting in the front row, makes a claim that 3,000 political Rajneetik 3,000 लोगों के ऊपर छापा. I mean, I think it's completely erroneous. Your point is he has made it without any substance. Similarly, sir, he is making allegations which are before the court. The court demands, and there is a special directive of the court that action should be taken on MPs, MLAs, elected representatives who are found to be culpable in any economic or other offence. We are on the contrary doing a public service. हम देश की जनता की हितों की रक्षा कर रहे हैं, जो चाहती है कि जो राजनीतिज्ञ है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटी को मेंटेन करें और देश का कोई कानून इम्यूनिटी नहीं देता. चेयर और देश का कोई कानून राजनीतिक लोगों को इम्यूनिटी नहीं देता. Take your seat now. Honorable members, please. Honorable members, if I have chosen to hear leader of the opposition who volunteered to make an input and leader of the House, no further discussion on the point. I will have a meeting with the floor leaders and also with leaders of the smaller parties, nominated members and independents, and we will have a mechanism. I personally believe that this theatre is too sanctified to get an input of which the member does not take responsibility. And if any member makes a statement in any manner whatsoever, placing reliance on anything, and that can't be sanctified, it has consequences. Sanjay Singh, and confined to your point, don't flank papers. Just make your point. उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा. अब इसी में अगर no point in zero. सर यहाँ इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं. उनके जवाब में सरकार ने ये बताया कि 3,000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया.
मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह गए सर संजय रावत। Point well taken. Take your seat. 100 दिन रह गए, बाद में कह दिया इलीगल है। Take your seat. बाद में कह दिया इलीगल सर। Please take your seat. सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली one second. इन लोगों ने क्या Honorable member, वो बता के बात खत्म करूंगा। Honorable सर हमारे honorable member, let me caution you, and I'm using the word with sense of responsibility. Are you aware when a point of order can be raised? Not in 0 hour. But not in 0 hour, not in 0 hour. So, honorable member, 1 second, it's over. Honorable member has made some reflections. You all are aware, in public domain, it will be difficult to sustain them. To make a sweeping statement on this platform that no action is being taken, where multiple adjudicatory mechanisms have taken place. We cannot allow this platform to be used that you say nothing has been taken. Make your point carefully. I will examine all that the honorable member has said, and the honorable member will be called upon to substantiate it on the floor of the House and leave it on the table. I now... इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराद गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है।
सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। Honorable member will put on record on the table the decision referred to him by. You have made reference to a decision. Put it on table of the House. Dr. Lakshmikant Vajpayee. आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपको सामने विषय रख रहा हूं। मेरठ में 2014 में अंबेडकर हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी और उसके बाद मेरठ में आरसीएस योजना में छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। 1500 मीटर की हवाई पट्टी है। जब उस पर जूम एयरवेज की बिड हो गई, 40 सीटर उड़ाना तय हो गया, उसके बाद अधिकारियों ने गड़बड़ करके वहां पर ATR 72 के लिए बात करनी शुरू कर दी। 2014 से किसानों की जमीन आरक्षित है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास और 5800 रुपए रेट तय है। न किसानों की जमीन ली जा रही है, न एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि अब अधिकारियों ने एक नया किया है कि 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाएंगे। मेरठ से कभी भी 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आर्थिक वायबिलिटी नहीं है। ATR 72 उड़ा दें, फिर आवश्यकता होगी तो बड़ा उड़ाना है। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद, मेरठ से जालंधर और जम्मू 4 छोटे जहाजों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से, आपसे भी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल आरसीएस योजना में जिसमें छोटे एयरपोर्ट उड़ाने की बात तय हुई थी उसको 6 महीने के भीतर उड़ाए। वहां पर टर्मिनल भवन तैयार है, 1500 मीटर हवाई पट्टी है, 300 मीटर हवाई पट्टी के लिए किसानों की जमीन आरक्षित है। अगर उसको 300 मीटर बढ़ा दें तो ATR 72 उड़ जाएगा और 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने की जो कल्पना है, ये अधिकारी धोखा दे रहे हैं और 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। दुर्घटनाएं सामान्यतः होती है, लेकिन किसी निश्चित स्थानों पर होना गंभीर चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूं। आज देश में लगभग सभी लोग निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार जिले में स्थित खलघाट मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के मध्य होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस मार्ग पर न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों को खोया है और ये दुर्घटनाएं निरंतर बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस मार्ग के गणेश घाट पर 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है, जो कि निरंतर होने वाली घटनाओं का स्थान बन चुका है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका निराकरण अविलंब होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज मैं सदन के समक्ष खलघाट मानपुर दूरी लगभग 50 किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं के विषय पर हुए एक अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अनुसार वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 978 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1267 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान वर्ष 2016 से 2018 के बीच 626 माइनर बच्चे एवं न जाने कितने नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र के जनता ने इस सड़क मार्ग पर गणेश घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, मार्ग की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कई बार मांग की है, जो आज भी लंबित है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठोस से भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है
कोई मूल्यांकन होना चाहिए ताकि कोई माँ अपने लाल को और कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने से वंचित नहीं रहे। मेरा यही विनम्र आग्रह है। जय हिंद, नर्मदे हर। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। So much, Honorable Chairman, sir. Sir, हाल ही में एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, उसने एक देश में जो हमारे साइबर अटैक्स का इशू है उसको हाईलाइट किया। दो चीज़ें हाईलाइट हुई उसमें सर, एक तो है जो डेटा प्रिवेसी की हम बात करते हैं, डेटा ब्रीच की बात करते हैं, वो सामने आई, और दूसरा कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स क्रिपल हो जाते हैं एक साइबर अटैक के चलते, वो हाईलाइट हुआ है सर। पर उसी के चलते सर एक सेकेंड, आप पूरा सुनने की क्षमता तो रखिए सर। यहाँ पर आपने मुझे ये इजाजत दी है कि आपके समक्ष मुद्दे को रखूं और किसी और की इंटरप्शन इसमें सही नहीं है सर। तो पिछले 3 साल में 3 गुना इजाफा हुआ है साइबर अटैक्स में। हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और मेरा कंसर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सजेशन था, क्योंकि अब तक हमने आईटी मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, और पिछले 3 साल में अगर हम डेटा ब्रीचेस देखें तो एयर इंडिया डेटा ब्रीच हुआ था, जिससे मलेशिया एयरलाइंस हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पुलिस एग्जाम डेटाबेस भी ब्रीच हो चुका है, कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स भी लीक हुए हैं, आधार डेटा रिलीज हुआ है। तो ये मैं मानती हूँ, बार बार कहा जाता है कि अब वॉर्स जो होंगी लैंड पे नहीं होंगी, साइबर स्पेस में होंगी, तो हमें अपनी आप को, और कमेटी रिपोर्ट भी कहती है कि हमें अपने आप को पुख्ता करना पड़ेगा। जो हमारे हेल्थ स्पेस में अटैक्स हुए हैं उसमें इजाफा करीब 95% हुआ है सर। तो आपके माध्यम से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्पेस में हम लीड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हमें लीड करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस होना चाहिए, जिससे इस तरीके के साइबर अटैक से हम अपने देश के डेटा को सुरक्षित रख पाएं। थैंक यू सर। श्री हरनाथ सिंह यादव। कमेटी में कैसा काम है मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मिला जुला के मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी ज़मीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चेंथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में एक बोलना चाहूँ तो कहूँगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। श्री वाइको, sir, he should substantiate the facts, and sir, you should take I'll take it. and
Take your Shri Vaiko. Take your seat, honorable member. Take your seat. Take your seat. Solved by the government of Karnataka. Modi is arising already solved the problem. Shri Vaiko. Mr. Chairman, sir, this has been already settled by the government Shri of Vaiko. Tamil Nadu. Then why he is raising this here? It is unwarranted. Honorable member. Yes. Your 0 hour. Shri Vaiko, please continue. Do you have your 0 hour? Name is not in the list, but he is calling you. Out of the list. Shri Dhananjay Mahadik. धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं किसी भी शहर का अगर पूरा और परिपूर्ण विकास होना है तो उसे अच्छी कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है सर एयर कनेक्टिविटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को संज्ञान में लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आरसीएस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना लागू की थी। उड़े देश का आम नागरिक ये कह के जो हवाई चप्पल पहनेगा वो भी हवाई जहाज में सफ़र करेगा, ऐसी स्लोगन देके ये योजना शुरू की थी सर। सभापति जी, महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ज़िला है सर। यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। सोलापुरी ब्लैंकेट, सोलापुरी तौलिया, नैपकिन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है सर। यहाँ पे देश की सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री सोलापुर में है सर, 38 शुगर फैक्ट्रीज है। यहाँ पे पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, और इसी के चलते जो यहाँ पे सोलापुर में होडगी रोड में सर, हाफ मिनट सर, क्वेश्चन आवर सोलापुर सर, होडगी क्वेश्चन नंबर 46